Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Administrator. Today we are going to discuss a very important topic for the civil services examination, and that is related to the mains examination. And this video is for those aspirants who are appearing in the mains examination, and as well as those who have started their preparation for the civil services examination. And we are going to discuss about the 2 and 3 very important aspect of this GS2. GS2 के बारे में लोगों का ये एक मिथ है कि इट इज़ एन इजी पेपर, बट फॉर अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का स्कोर अगर देखा जाए GS2 पे, सो दे हैव वेरी लेस मार्क एज कंपेयर टू द एथिक्स पेपर एंड द पेपर 3. And why it happens? So there are several reasons, and today we are going to solve these myth and also what are the sources of the question that UPSC asks in their mains examination. आपको लगेगा सर कि ये सोर्स कहाँ से पता चल गया? So now we will discuss with the evidence, okay, a questions pattern of the UPSC. So before we are going to discuss this question paper, first of all we have to decode the syllabus of the civil services UPSC mains examination. आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, this is the official notification of the UPSC and we are going to decode the syllabus of the UPSC GS paper 2 mains examination. इससे क्या होता है कि एक आइडिया मिल जाता है and then we will also observe the PYQ of the UPSC. तो एक certain आइडिया हो जाता है कि हमें कहाँ प्रिपेयर करना और where we are lagging. तो चलिए शुरू करते हैं. द फर्स्ट डिस्कशन दैट इज रिलेटेड टू द syllabus. Okay, so first of all, see, we will go through the line by line. The Indian Constitution, this is the very vague word, Indian Constitution. अब Indian Constitution में पढ़ने हो जाओ तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं. तो specifically what we have to study, historical underpinning, that is devolution and development of the Indian Constitution, features, amendments and significant provision and basic structure. तो क्या सर amendment का प्रोसीजर पूछा जाएगा? So as per the experience of the UPSC examination, वहाँ amendment प्रोसीजर नहीं पूछा जाएगा. The applied aspect, ठीक है, अप्लाइड एस्पेक्ट, विच मीन्स दैट अभी कोई रिसेंट अमेंडमेंट हुआ हो जो इंपॉर्टेंट है, वी विल डिस्कस विद दैट क्वेश्चंस दैट यूपीएससी हैव आस्क्ड. तो ऐसा नहीं हुआ कि अमेंडमेंट प्रोसीजर यू मस्ट नो व्हाट इज द प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 368 एंड अदर देन आर्टिकल 368, जिसे हम लोग अमेंडमेंट नहीं कंसीडर करते हैं सिंपल मेजोरिटी. बट एनी हाउ वी हैव टू नो द बेसिक फीचर्स. लेकिन क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारा नहीं आएगा कि व्हाट इज अमेंडमेंट प्रोसीजर. ओके, तुम्हें फोकस करना होगा, यू हैव टू फोकस कि अभी न्यूज़ पे क्या चल रहा है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैपेंड इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम रिलेटेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो. क्लियर? देन सिग्निफिकेंट प्रोविजंस. So there are lots of provision in the Indian Constitution. Yes, they can ask, and especially that is related to the fundamental rights and DPSP and especially Article 21. लेकिन वो एक different set है discussion का. अभी हम लोग syllabus पे focus करते हैं. And the basic structure of the Indian Constitution. So basic structure of the Indian Constitution में लोग चले जाते हैं basic structure doctrine पे. नहीं, basic structure doctrine that is okay, you have to know, but what are the basic structure of the Indian Constitution we have to prepare very well. देखो ये साफ साफ UPSC का syllabus लिखा हुआ है, तो अपने मन से हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फंक्शन एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट. यू नो वेरी वेल. ओके, एंड इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर्स ऑफ फेडरल डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू द लोकल लेवल ऑफ एंड चैलेंजेस देयर. देखो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं. क्लियर? दिस टॉपिक हैज कवर ऑल 1, 2 and 3 tier स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसने यूनियन एंड स्टेट के बारे में बात किया, and issues and challenges pertaining to the federal structure of center और state relationship के भी cover कर लिए. Okay, what are the issues between the center and state relationship, whether for the federal structure, whether this is good, bad, और क्या recent development हुआ है, which you have to aware about these things, कि तुम्हें ये जानना जरूरी है. एंड इसके लिए न्यूज़ पेपर पढ़ो. डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस, लोकल लेवल पे एक क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी डेफिनेटली आस्क अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. उसको तुम इग्नोर नहीं कर. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वेदर इट इज
पंचायती राज, वेदर इट इज योर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और अभी तुम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी देख सकते हो। बट मेरा इम्पोर्टेंट ये है कि आप म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज और कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तीन को फोकस करो। कभी दे देगा इन लोग के इंफ्रास्ट्रक्चर मर्जर पे, देन द फाइनेंस इश्यूज, तो फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एस्पेक्ट को तैयार करिएगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से जुड़ा। देन कम टू द नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ पावर विद वेरियस ऑर्गन, dispute redressal mechanism and institutions. Clear? So yes, especially they ask question related to the judiciary and parliament related interconnected question. Several times you have been observed in the UPSC mains examination that UPSC asks the delegated legislation theory or laws prepared by the judiciary is not good, unethical, तो तुम्हें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। and you have to prepare the separation of power, that's basically related to the, this is not in the context of USA, वहाँ कंपैरिजन वाले एस्पेक्ट पे हम लोग उसको देखेंगे। क्लियर है? हाँ, डिस्प्यूट रेडिसल मैकेनिज्म में समटाइम्स यू हैव हर्ड अबाउट दिस ADR, तो वो जुडिशरी का एक सेपरेट सेक्शन ही है, वहाँ पर हम लोग करेंगे। लेकिन समटाइम्स यूपीएससी आस्क अबाउट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो सर ये कहाँ से आ गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। बट सपोज दैट इन 2019 यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू द कैट। अब कैट को जाकर देखोगे तो इन 2019 इट वाज इन न्यूज, सेवरल अमेंडमेंट हुआ एंड सम पावर हैड बीन गिवन टू द कैट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द हाई कोर्ट, इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट की तरह ये एक्ट करेगा। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। तो आप करंट अफेयर्स पे और न्यूज पे हमेशा फोकस बनाए रखिएगा। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ द अदर कंट्रीज। ये डेफिनेटली यूपीएससी एक क्वेश्चन ये पूछता है कंपैरिजन से हल सर। तो कभी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है 2024 में, देन अर्लियर इट वाज फंडामेंटल राइट्स, सॉरी दिस यूएसए एंड इंडियन कंपैरिजन, देन सेकुलरिज्म कंपैरिजन, अब फिर जुडिशियरी कंपैरिजन था 2019 में। तो दे डेफिनेटली आस्क द क्वेश्चन, कभी स्पीकर पे क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको क्या करना है दिस ईयर, माय स्ट्रीम से दैट कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ द यूएस, फ्रांस एंड इंडिया, you have to prepare this aspect, and as well as you have to prepare the next aspect, that is the impeachment procedure of the of the US president and Indian president, maybe, and also judiciary of US and India, and they definitely or maybe they can ask a question related to the judicial supremacy of the US and the judicial supremacy of the India। तो यहाँ पे तुम्हें बात करना होगा मे बी। तो 3-4 डायमेंशंस हैं, दोज हु आर गोइंग टू राइट इन 2025 मेंस दे कैन प्रिपेयर दिस थिंग्स। ठीक है, तो एक कंपैरिजन तुम्हें मिलेगा, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद अदर कंट्रीज। तो सर कितने कंट्रीज का करना होगा? तो बेसिकली वी एडवाइज टू फॉलो 4 or 5 countries where there is a democracy and they have the different set of arrangement। like अगर parliamentary form government में जाओगे तो you have to focus about the UK, ओके। देन अगर सेपरेट प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जाओगे तो हमारे पास मॉडल है यूएसए। अगर मिक्स में जाओगे तो हमारे पास पार्लियामेंट्री और दोनों प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट का मिक्स है तो हमारा फ्रांस। तो व्हाट एवर द स्कीम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव अडॉप्टेड, तुम्हें उसका प्रिपरेशन करना होगा अदर कंट्री से। अब यहाँ तो बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो बेसिकली द ट्रेंड ऑफ द यूपीएससी अराउंड इन दीज 3 कंट्रीज। क्लियर? अब अगर कोई न्यूज पे आ जाए रशियन अरेंजमेंट या फिर कोई और अरेंजमेंट तब उसको प्रिपेयर करना, बट बेसिकली यू हैव टू फोकस इन फ्रांस, यूके एंड यूएसए। क्लियर? आइए नेक्स्ट डिस्कशन, दैट इज ओके। नेक्स्ट टॉपिक वाज सिलेबस डिकोड करो, काम आगे बढ़ते रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी
ये एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बहुत बड़ा वर्ड है। इन एग्जीक्यूटिव दे कवर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन पॉलिटी। तो इस पे बेसिकली दे फोकस इन दिस फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन, प्रेशर ग्रुप, ज्यादा क्वेश्चन वहां पे आता है। अदरवाइज दे कैन आस्क क्वेश्चन जुडिशरी। देखो प्रिपेयर तो तुम्हें करना होगा, तो ये तुम्हारा इजी है, ये तुम कर सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। यस, द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट, यू मस्ट प्रिपेयर। एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। सर तो किस एस्पेक्ट का करें? दोज वर इन न्यूज। क्लियर? अभी जैसे तुम्हारा यहाँ वोटर रिवीजन चल रहा है, इंटेंसिव वोटर रिवीजन तुम्हारा लिस्ट बिहार का, तो यू हैव टू प्रिपेयर कि कर सकते हैं सेक्शन 21 में क्या इश्यूज है, ओके, सब क्लॉज 3 पे क्या इशू है, क्या डिबेट है, और व्हाट आर द पावर गिवन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड देन देयर इज आल्सो अ न्यूज दैट इज डी रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो भी आ सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को तुम लोग प्रिपेयर करो, डेफिनेटली प्रिपेयर करो, यू कैन नॉट इग्नोर द सिलेबस। Come to the appointment to various constitutional posts, power, function and responsibilities of various constitutional bodies. See, that was an easy, but यहाँ पे हम लोग को फोकस करना है कि those which are in news, otherwise यहाँ पे बहुत सारा है, and that is not a direct question कि what are the power. UPSC definitely asks the applied question, वो हम लोग देखेंगे उसमें। Then statutory, regulatory and various quasi judicial bodies, you have to prepare it very well. Again, those which are in news, ये उसके लिए है those who are going to appear in this year means, लेकिन those who have just started their preparation, उसे सारा maximum जो important है वो तुम्हें करना ही होगा। You have to prepare all the important statutory, regulatory and quasi judicial bodies. अब आ जाओ ये गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर, issues arising out of their design and implementation. See, there are 3 dimensions and definitely 2 dimensions. Number 1, that is the academic aspect. What is public policy? Okay, what are the structure, feedback system? तो उसे हम लोग को यहाँ पे नहीं प्रिपेयर करना है. We have to prepare the flagship scheme and policies of the government. तो सब policies तो बहुत सारे हैं, but those which are related to the polity and the welfare of the people. ठीक है, welfare of the people. And as far as the questions of the UPSC is concerned, तो तुम्हें वहाँ रिफ्लेक्ट करेगा कि फ्लैगशिप स्कीम जितना होता है गवर्नमेंट का, जो मेजर रोल प्ले करता है, that definitely ask the question. तो उसे जाने नहीं दो, you have to prepare that policies. That is aspect of the governance. Development process and the development industry, इसमें role of NGO, self-help group, various group, association, donors, charities, institutional and other stakeholders. It's easy है, clear. You have to prepare this. And इस पे focus करना those which are in news. सारा जो है वो न्यूज से जो जुड़ा है. Then directly welfare scheme for vulnerable section of the population by the center and the state. That is again related to the flagship. Okay, flagship scheme here means which bring the larger change in the society. अभी तुम देखो कहीं कहीं okay they are going and several states are providing financial assistance to the women of their state. तो ये क्या है? तो कहीं कहीं पे जैसे ट्राइबल स्टेट पे तो ये बहुत लैंडमार्क पॉलिसीज है, वहाँ से बहुत अफेक्ट किया एंड दे आर कमिंग विद अ गुड पॉजिटिव रिजल्ट. बट देयर क्रिटिसिज्म भी है कि ये वोट खरीदने का स्कीम है कि ओके वुमेन्स आर वेरी एक्टिव इन वोटिंग प्रोसीजर, तो वुमेन के अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है, सो वुमेन कंसिडर होकर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, तो वो एक अट्रैक्टिव है. तो ये दोनों जाता है, बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बोथ साइड. क्रिटिसिज्म भी देखना है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखना है. बट एनीहाउ हियर okay, government is type to have a workforce which reflect gender balances. याद रखना यहाँ पे for the protection of okay institution. Okay, government steps to have a workforce which reflect gender balance and women candidates are encouraged to apply it and betterment of this vulnerable section. तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसमें vulnerable section को क्या, एक तो सबसे पहले women vulnerable section इसको कंसिडर किया जा रहा है, then SCs, then STs. ठीक है, और इसमें फिर आ जाओगे PVTG ग्रुप भी है. नेक्स्ट, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. हाईलाइट करो, ये तुम्हें प्रिपेयर करना है. वैसे भी ओके
दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नेंस, बट ये तुम्हें इकोनॉमी में भी पढ़ना है और सोसाइटीज पे भी पढ़ना है। Anyhow, issues relating to poverty and hunger, ये तुम्हारा डायरेक्ट टॉपिक है इकोनॉमी का, बट हेयर यू हैव टू स्टडी एज अ गवर्नेंस एस्पेक्ट। तो इस पे एक क्वेश्चन जरूर बना के रखिएगा रेडी, आपका आएगा। बस क्या सर, दो विचार न्यूज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ये गुड गवर्नेंस और कॉन्स्पेरेंट है, जैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, एप्लीकेशंस, मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशन एंड पोटेंशियल। फिर सिटीजन चार्टर्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर्स मेजर, दैट इज अ वेरी बिग टॉपिक और इजी है। तो इसके लिए भी दोज विच आर इन न्यूज वो प्रिपेयर करना है उन बच्चों के लिए, दोज आर गोइंग टू अपीयर इन द मेंस एग्जामिनेशन। आ जाइए सबसे बड़ा रोल, दैट इज रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। सो ये एक अच्छा टॉपिक है, इसे आप प्रिपेयर कीजिए, डेफिनेटली प्रिपेयर कीजिए। एंड कम टू द देन IR सेक्शन, इंटरनेशनल रिलेशंस। सो हेयर India and its neighborhood, कभी भी okay, whenever you are going to prepare the IR, international relation aspect, उसे इंडियन पर्सपेक्टिव से ही पढ़ना है। क्लियर है, इंडियन पर्सपेक्टिव से। सपोज दैट इफ रसिया यूक्रेन वार इज देयर, पैलेस्टाइन वार इज देयर, सो व्हाट आर द स्टेक ऑफ इंडिया, इंडिया का उसमें क्या स्टेक है। क्लियर है, जो भी मजदूर जा रहे थे इजराइल ट्रेनिंग में वहां रुक गया है, तो इंडियन पर्सपेक्टिव से आपको जानना होगा। अच्छा, जब भी इसे पढ़ने जाओ तो पेस्टल तो एक चलता ही है, ये पेस्टल थ्योरी, तो वहाँ आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, स्ट्रैटेजिक और फाइनेंशियल, ये 5-6 डायमेंशन पे आप उसके रिलेशनशिप को जब भी देखना। एंड स्ट्रैटेजिक मीन्स हियर व्हाट, स्ट्रैटेजिक हियर इट इज रिलेटेड टू द डिफेंस ऑफ आवर नेशन, प्रोटेक्शन ऑफ आवर नेशन। अभी ये कि मैरीटाइम सिक्योरिटीज हमारा क्या है, क्लियर है, उधर चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इधर पाकिस्तान अटैक नहीं हो रहा, तो इस डायमेंशंस को भी हम लोग को देखना है कि व्हाट आर द ओके एग्रीमेंट बिटवीन दिस टू नेशन। अब इंडिया का अच्छा साथ क्वाड के साथ चल रहा है, क्लियर, को क्या हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा इंडिया को व्हेन देयर इज अ वॉर। रसिया, ओके, व्हाट आर द सपोर्ट गिवन बाय द रसिया और तुम्हारा USA। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से इसे बोलना। बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग एग्रीमेंट, सर यहाँ तो बहुत लंबा है, UN है, फिर तुम्हारा G20 है, G7 है, देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रुप्स, ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर इंडिया इज अ मेंबर। तो कौन सा हमें करना होगा, अगेन दोज विच आर इन न्यूज जो इस साल देने जा रहे हैं। You have to prepare the static aspect, those which are important in nature, but definitely prepare those topics and those groups which are frequent in news. Effect of policies and politics of developed and developing countries on India's interest. देखो ये साफ UPSC ने इंडियन पर्सपेक्टिव से बात लिख दी है, अब इधर उधर की बात नहीं। अब तुम चले कि हाँ हम जा रहे स्कॉलर बनने, तो स्कॉलर बनो, तुम्हारी इम्पोर्टेंट है, बट एग्जाम निकालने के लिए यू हैव टू लुक ओवर द टॉपिक विद द इंडियन पर्सपेक्टिव। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसीज एंड फोरा एंड देयर स्ट्रक्चर। वर्ल्ड बैंक है, UN है, तुम्हारा फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। सो किसको प्रिपेयर किया, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर ऑल मेजर वन एंड द consistent revision of those which are in the news. ठीक है सर, आप बार बार इसे रिफ्लेक्ट कर न्यूज, मैं अभी आपको एविडेंस दिखा रहा हूँ। आई होप दैट सिलेबस आप लोग समझ गए होंगे कि व्हाट आर द डिमांड ऑफ द UPSC और क्या क्या सोर्स होगा, वो सारा कुछ अभी इस वीडियो पे बताएंगे। क्लियर है ना, कम टू द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, और वो क्या है, दैट इज क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सो एक बड़ा एक्सरसाइज था, ये UPSC नोटिफिकेशन था, दिस वन, दिस इज द 2023। सो आई हैव yes, I have 2 question paper, that is 23 and 24 means for the evidence कि यहाँ से देख लो कि देखो क्या यहाँ पे क्वेश्चंस UPSC ने पूछा है and how it is helpful for you. Now very fastly बताओ, पहला क्वेश्चन तो मैं इसको रेड कलर ले लेते हैं, that is good. Constitutionally guaranteed judicial independence is a prerequisite of democracy. Generally, it is a very general question. Clear? This is very general question. But December 2022 दिसंबर, देखो आज के टॉपिक पे हमने 2-3 चीजें फोकस करनी। टुडेज वी आर गोइंग टू कवर ये करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ, टाइम पीरियड फॉर द करंट अफेयर,
Clear? Question pattern. Number 3, sources. दिसंबर 2022 द हिंदू के न्यूज़पेपर में आपको मिल जाएगा इश्यूज रिलेटेड टू द जुडिशियल independence. Come to the next aspect, that is who are entitled to receive free legal aid. NALSA. See, Draupadi Murmu was already spoken about this NALSA, and she has already discussed about the prisoners. So yes, she has a very good intention related to those prisoners who have not faced even their trial, and that is a very serious issues. But anyhow, तो ये अगेन न्यूज़ पे था 2020, ये तुम्हारा 23 द हिंदू. तो देखो सब, अब जाके आप तुम क्रॉस चेक कर सकते हो. नेक्स्ट क्या मतलब द स्टेट्स इन इंडिया सीम्स रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडी. देखो अभी सिलेबस देखा था, यहाँ पे आ गया एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज द फाइनेंशियली. सो इस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम और फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी आता है. ये द हिंदी में न्यूज़ था उस साल, उसको देखना था. क्लियर? उसने आरबीआई की रिपोर्ट भी थी इस पे. सो यू हैव टू लुक ओवर दिस. कभी भी द हिंदू में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पोस्ट टॉपिक है, उसको प्रिपेयर कर लेना. देन कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी. डेफिनेटली जनवरी 2023 पे इंडियन पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की बात हो रही थी. सो दैट इज अगेन इट इज रिफ्लेक्टेड इन द हिंदू. फिर आइए डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर द स्टेट लेजिस्लेचर इन मेंटेनिंग ऑर्डर, impartially conducting legislative work and in facilitating best democratic participation. See, this is very general question, okay, asked by the UPSC. लेकिन अगर तुम ओशो जाके देखो तो स्पीकर का रोल उस समय बहुत कंट्रोवर्शियल था. ठीक है, किस किस डायमेंशन में एंटी डिफेक्शन लॉ महाराष्ट्र का इशूज था एंड नॉर्थ ईस्ट का भी इशू था. तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ये न्यूज़ पे था और द हिंदू 2023 में था. जो मेंस हुआ है वो सितंबर 2023 पे हुआ है. तो आपको कहां से करना है वो भी हम लोग टाइम पीरियड भी देखेंगे. क्लियर है? नाउ सो 1 to 5 डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन. कम टू द 6. द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस हैज बीन द इनएडिक्वेट अटेंशन पेड टू द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडिया सजेस्ट मेजर्स दैट कैन एड्रेस इन इंडिया. ये अब आ गया हम लोग गवर्नेंस पे. ये भी न्यूज़ पे था सितंबर टू द हिंदू 2022 पे. जो ईयर के साथ हमने सारा कुछ लगा दिया, आप जाके देख सकते हो. Come to the next. Discuss the role of competition commission. उसमें अमेंडमेंट हुआ था in India in containing the abuse of dominant position of multinational corporation in India. Refer to the recent decision. ये डायरेक्ट करंट से निकला था 2022 अगस्त. द हिंदू में आपको इसके बारे में रोल मिल जाएगा. तो सर कैसे जाने कौन इंपॉर्टेंट है? फ्रीक्वेंट और मेजर लैंडमार्क, वो भी अब डिस्कस करेंगे क्या क्या डायमेंशन है, तुम पकड़ सकते हो. ओके, हियर e-governance as a critical tool of governance has ushered in effectiveness, transparency and accountability in government. What inadequacies hamper the enhancement of its features? 31 December 2022 द हिंदू पे एक न्यूज़ था. तमिलनाडु ने एक लैंडमार्क डेवलपमेंट किया था ई-गवर्नेंस को लेके, तो उसको लेके है. दैट इज, अगर सिलेबस तुम्हें पता होगा तो तुम्हें टॉपिक भी पता चल जाएगा कौन हमें प्रिपेयर करना है. क्लियर है? सो ये हुआ तुम्हारा ई-गवर्नेंस से जुड़ा हुआ टॉपिक. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वायरस ऑफ कन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द एससीओ. एससीओ उस समय करंट की न्यूज़ पे था 2023 पे, आप देख लो जी. ओके, नेक्स्ट Indian diaspora. Indian diaspora has filled a new height in the West, described in economic, political, and that is frequent in news कि इंडिया और वेस्ट के साथ कोलैबोरेशन. सो एक जनरलाइज क्वेश्चन है. चलो अब एक पैटर्न समझ में आया होगा तुम्हें अभी तक, वो पैटर्न मैं तुम्हें बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वो पॉलिटी से डायरेक्ट था. क्वेश्चन नंबर 6 जहां शुरू होता है, तो 3 क्वेश्चन तुम गवर्नेंस से देख लोगे, 6, 7, 8. सिक्स, 7, 8 ये तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा गवर्नेंस से जुड़ा हुआ. ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट 9, 10 ये 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा वो
IR से जुड़ा हुआ, ठीक है। सो द कैलकुलेशन इज सी 1 to 10 ऑल फ्रॉम सी 1 to 10 क्वेश्चन सारा कंपलसरी है, सबका मार्किंग कितना है 10 नंबर का। सो 1 to 10 is so what we have observed that yes 1 to 5 quality questions, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्क के क्वेश्चन 1 to 10 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्कर्स। इसमें से 1 to 5 और समटाइम 1 to 6, ठीक है, ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं क्वालिटी से डायरेक्टली, एंड देन समटाइम 6 to 8, समटाइम 7 to 8 ये होते हैं गवर्नेंस से, एंड डेफिनेटली 9 to 10 दो क्वेश्चन जो होते हैं वो IR से होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द पैटर्न एंड सेम पैटर्न रिफ्लेक्टेड इन द 20 मार्क्स का क्वेश्चन, वहां पे तुम देख लेना, सॉरी 15 मार्क का क्वेश्चन। So shall we start? Yes, definitely. This is the 15 marks question, 11th question. The Constitution of India is the C. Again, there is a reflection of the constitutions. Directly question asked by the UPS. Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for progressive societies. ये लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, दैट इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट एस्पेक्ट, इलस्ट्रेट विद स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सपैंडिंग हॉरिजॉन ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये मिक्स कर दिया इन्होंने राइट इश्यूज पे आर्टिकल 21 को और लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन से। सो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन पे अब इस पे चैप्टर एक तो डिस्कशन हो जाएगा। लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन में दो एस्पेक्ट आते हैं, नंबर 1 दैट इज बाय द अमेंडमेंट आता है, तो यहाँ अमेंडमेंट से नहीं पूछा गया, क्लियर। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, दैट इज द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, क्लियर है। सो जुडिशरी टाइम टू टाइम कम विद देयर इंटरप्रिटेशन व्हिच आल्सो इंश्योर दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। वो एक अलग अलग डायमेंशंस पे डिबेट करते हैं और एक नया जजमेंट आता है, दे कम विद द ओके different interpretation which ultimately increase the horizon of this article of the Indian Constitution, specifically article 21। उसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन यस द जजमेंट बिकम द रूल्स फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट राइट, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड केस लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव जेंडर जस्टिस की बात करना है, जहाँ पे तुम्हें रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या हुआ है और केस लॉ क्या हुआ है, जेंडर जस्टिस इंक्लूड कर दिया सारा, वो तुम्हारा इट कवर्स दैट वेरियस डायमेंशंस, ठीक है, जहाँ पे ऑल वुमेन्स आर इक्वल, मेन आर इक्वल, और उसके बाद फिर द रिजर्वेशन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एट दैट ईयर फॉर द वुमेन इन द पार्लियामेंट, वो सारा कुछ इस पे न्यूज़ पे आया था, दैट्स व्हाई दे कम विद द जेंडर जस्टिस। ये अगेन न्यूज़ पे था द हिंदू 2020 दिसंबर। Account for the legal and political factor responsible for the reduced frequency using Article 356 in the government। देखो Article 356 प्रेसिडेंट रोल वहाँ पे न्यूज़ पे था, क्लियर। इंडियन एक्सप्रेस पे तो मिलेगा 9 फरवरी 2023 को। और ये बहुत जनरल क्वेश्चन है, जब भी यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द फेडरल एस्पेक्ट और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप या फिर गवर्नर पोस्ट के लिए, तो आर्टिकल 356 को हमेशा तैयार करना है। यू हैव टू प्रिपेयर आर्टिकल 356, दैट इज द जो हम लोग जनरल टर्म में प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, ठीक है। यू हैव टू प्रिपेयर। देखो क्वेश्चन कितने अच्छे से उन्होंने डिराइव किया, डायरेक्टली नहीं पूछा। ये बेरूबारी यूनियन केस के बाद का है, नहीं हो, हमें अभी सिर्फ फोकस करना है क्वेश्चन में। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ऑफ वुमेन्स इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, ये है जुड़ा हुआ 8 मार्च 2023 द हिंदू का वुमेन रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ। दो क्वेश्चन जेंडर जस्टिस से डाल दिए। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ one of first constitutional amendment act, to what extent does it reflect the accommodative spirit of federalism। ये उस समय establishment of appellate tribunal हुआ था 2023 में, एक बहुत बड़ा इवेंट था ये, ठीक है। तो उसके लिए फरवरी 2023 द हिंदू में, तो establishment of appellate tribunals में that is related to the very important topic that is the GST and things, but
Now come to the next. Maybe explain the structure of the parliamentary committee system. How far have the financial committee helped in the Indianization of the parliament? तो parliamentary committee उसमें न्यूज भी थे अप्रैल 2023. डेवलपमेंट यहाँ से आ जाओ फिर 17-18. डेवलपमेंट एंड वेलफेयर स्कीम फॉर द वल्नरेबल बाय इट्स नेचर आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच. डू यू अग्री? गिव रीजन फॉर योर आंसर. अगेन आ गया तुम्हारा वल्नरेबल सेक्शन के लिए. यू हैव टू गो. देन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी गवर्नेंस से आएगा. सक्सीड इंक्रीज ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई इन वेरी सेक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट एनालाइज द लिंकेजेस बिटवीन एजुकेशन, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट. ये न्यूज में था. देखो उस साल हम लोगों ने भी अपने इंस्टीट्यूट के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, जो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रिफ्लेक्ट हुए थे. अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 19 और 20. ये जुलाई 2023 पे था. नेटो का न्यूज. अच्छा, नेटो पे वहाँ दो तरह का डेवलपमेंट हुआ था. एक यूक्रेन वाला एक इशू तो हुआ था, एंड फ्यू मोर कंट्रीज वाज इंक्लूडेड इन दिस नेटो ग्रुप. तो अब उस पर देखो, इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछ दिए. देन सी इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फॉर द कॉस्मोस. एवर स्टेटमेंट द रोल ऑफ IMO. ये उस समय न्यूज पे था 2023. डाउन टू अर्थ पे एक सेपरेट आर्टिकल ही छपा था. एंड प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट, एनहांसिंग मैरीटाइम सेफ्टी. तो यू हैव टू ऑल्सो. तो सर अब हमें डेली मैगजीन पढ़ना होगा डाउन टू अर्थ. सी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पेपर 3 डाउन टू अर्थ तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा. बट फॉर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जहां भी न्यूज में आ जाए उसे प्रिपेयर कर लो. विच वॉज आई होप उस प्रिपरेशन से क्या होगा, तुम्हें फायदा होगा. यू विल बी गेट बेनिफिटेड बाय द प्रिपरेशन. अब देखो ये है 2024 सिविल सर्विस लास्ट ईयर का मेंस एग्जामिनेशन. पैटर्न समझ में आ गया है. 1 to 10 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे. 150 मार्क्स का होगा. उसके बाद 11 to 20 क्वेश्चन जो होगा तुम्हारा, अच्छा सॉरी ये वर्ड्स का है. 1 to 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा. ठीक है, ये तुम्हारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. और ये तुम्हारा 11 to 20 जो है वो 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. टोटल 250 मार्क्स का एग्जाम यूपीएससी इस पेपर में लेता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेपर 2024. सर ये है एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स असिस्टेड बाय वेरियस कमिटीज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द वन नेशन वन इलेक्शन. ये भाई तुम लोग तो जानते हो दैट वाज ओके वर्ड in the news, and also 2024 was the schedule for the Lok Sabha election. तो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन से तो क्वेश्चन आना ही वाला था. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आएंगे उस समय. एनी हाउ द हिंदी न्यूज पे लोकसभा थे. कम टू द नेक्स्ट. ओके, एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल. पहली बार फर्स्ट टाइम इंडिया फर्स्ट नेशनल लोक अदालत एस्टेब्लिश हुआ था तो 2023 द हिंदू में था. तो वो तो तुम्हें आएगा. जुडिशरी में ADR पे फोकस जरूर रखना. ADR मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जो तुम्हें करना होगा उसको, जिसमें नालसा, लोक अदालत, ये सारी चीजें आएंगी. मीडिएशन, तो उसको तुम्हें देखना होगा. द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम एज प्रैक्टिकल रिजल्ट मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. ये इसलिए था, और ये कंपैरिजन एस्पेक्ट में भी डायरेक्टली आ सकता है, दैट इज रिलेटेड टू द कैबिनेट सिस्टम ऑफ UK एंड इंडिया. तो ये क्वेश्चन उस समय 1 अप्रैल 2024 पे था और पूरा डिटेल था, उसमें देख लेना. देन कम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन. द ड्यूटी ऑफ CAG इज नॉट मेनली टू इंश्योर द लीगलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ आउटसाइड प्रॉपर्टी. CAG भाई उस समय न्यूज पे था, द हिंदू की रिपोर्ट में था, उसे जाके देख लेना डिटेल पे. और कोई नई बात नहीं इसमें. नेक्स्ट कम टू द एस्पेक्ट, एनालाइज द रोल ऑफ लोकल बॉडी इन प्रोवाइडिंग गुड गवर्नेंस. लोकल बॉडी ब्रिंग आउट द प्रोज एंड कॉन्स मर्जिंग द रूरल. देखो ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गया. ओके, मर्जिंग विद द अर्बन एंड लोकल बॉडीज. 12 जनवरी द हिंदू की इस न्यूज पे तुम्हें मिल जाएगा. देन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, वो डोनर वाला एस्पेक्ट देखा था ना, वो आ गया न्यूज पे. पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट हैव द पोटेंशियल टू मेक इंडिया डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव एज दे रिलेट टू सर्टेन वाइटल पब्लिक इश्यूज. अगेन दिस टॉपिक वाज कवर्ड इन द हिंदू जनवरी 2024. अब आ जाओ नेक्स्ट. पॉवर्टी एंड malnutrition create a vicious cycle adversely affecting human capital formation. What steps can be taken? ये PIB 2024 पे आया हुआ न्यूज था, उसको देख लेना. The doctrine of democratic governance makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment becomes absolutely positive. ये गवर्नेंस का क्वेश्चन है, सिविल सर्विस डिपार्टमेंट का. आ जाओ. द वेस्ट इज फोस्टिंग इंडिया. अगेन जनरलाइज क्वेश्चन.
9 and 10. The West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China's supply chain as strategically to counter China's political and economic dominance. Explain this statement with example. ये देख लो, ये that was in the news. और ये एक generalized question है जो हमेशा डिबेट में रहता है. Critically analyze India's evolving diplomatic, economic and strategic relation with the Central Asian Republic, highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics. तो प्रधानमंत्री का अगर आप फॉरेन विजिट देखिएगा तो you will find ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. अगेन पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करना, तो दीज आर वेरी जनरलाइज इन नेचर, उसको तुम्हें तैयार करना ही होगा. नेक्स्ट, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रिसेंटली पास्ड एंड इन्फोर्स्ड द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफंडेड. पेपर लीक का इतना इश्यूज था, उसके लिए इन्होंने लॉ बनाया था, तो डेफिनेटली वो एक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चन आएगा. कम आर्टिकल 21 इज अ वेरी फेवरेट टॉपिक फॉर द यूपीएससी पेपर 2, तो उसको प्रिपेयर करके जाना. राइट टू प्रिवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी and inherently protected in Article 21 of the Constitution. Explain this reference and discuss relating to the DNA testing of child in the womb to establish its paternity. ये समय न्यूज़ पे था आर्टिकल 21 फरवरी 2023, द हिंदू जाके देख लीजिएगा. ओके. 13, what changes has the union government necessarily into the domain of center state relations is suggest measures to adopt to build the trust between center. Generalized and फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि सेंट्रल स्टेट को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बात करने के लिए, तो एक जनरलाइज क्वेश्चन है. इसके लिए तुम्हें सेपरेटली न्यूज़ देखने की जरूरत नहीं है, बट प्रिपेयर करो इसको भी. एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ पीआई इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अगेन अ जनरलाइज क्वेश्चन. डिस्कस इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट एंड कंपेयर विद द सेकुलर प्रिंसिपल ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. ये आ गया, और इसका भी हमने क्वेश्चन लेक्चर पे कराया था अपने क्लास पे, तो डायरेक्टली ये रिफ्लेक्टेड है, कोई नया नहीं है इसमें. CDN Charter has been landmark initiative for center-centric administration, but it is yet to reach its full potential. CDN Charter है, PIB पे था न्यूज़ में, आपको देखना है, आप देखिए. ये पे in a crucial domain like the public health care system, the Indian, देखो CDN चार्टर सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन था, आ गया. हेल्थ केयर सिस्टम से आ गया, हंगर से भी आ गया 2023 में. तो यू हैव टू प्रिपेयर. द इंडियन स्टेट शुड प्ले वाइटल रोल टू कंटेन द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मार्केटाइज्ड मेडिसिन. सजेस्ट सम मेजर्स थ्रू विच द स्टेट कैन एनहांस द रिचर पब्लिक हेल्थ केयर एट द ग्रासरूट लेवल. ये अगेन इकोनॉमिक सर्वे में भी आया था, द हिंदू में भी आया था, और पीआई में भी था, पीआईबी में. ओके. ई गवर्नेंस से एक जुड़ा क्वेश्चन आएगा, वो आ गया फरवरी में. टेररिज्म हैज बिकम सिग्निफिकेंट थ्रेट, ये भी भैया न्यूज़ पे था, सो दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन यूपीएससी. द हिंदू जून 2024. Discuss the geopolitical and geostrategic importance of Maldives. Again, that was in news 3 February, 3 Feb 2024. So basically, after having all discussion, okay, we can come to the conclusion of the 2 or 3 aspects. Number 1, sir, what should be the total time period? To cover the current for the mains. So prelims के बाद से, after prelims, okay, and prior to mains, इस टोटल टाइम पीरियड का आपको प्रिपेयर करना होगा करंट. जैसे सपोज करो इन जून यू आर हैविंग प्रीलिम्स, समटाइम्स कम ऑल्सो में, बट जून, ठीक है. तो इसके क्वेश्चन तो ऑलरेडी 1 month बिफोर ऑलरेडी प्रिंट हो जाता है, बिकॉज दे हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द क्वेश्चन द डिफरेंट सेंटर. तो अगर जून में प्रीलिम्स है, ठीक है, तो तुम्हें अप्रैल तक का या फिर मई में, तो अप्रैल तक का करंट अफेयर्स तुम्हें तो तैयार करना होगा प्रीलिम्स तक के लिए. लेकिन मैं यहाँ, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द पीटी, अभी हम मेंस की बात कर रहे हैं, और मेंस तुम्हारा सितंबर पे सपोज करो, ठीक है. तो इसका भी 1 month बिफोर क्वेश्चन पब्लिश हो जाता है, यानी अगस्त तक. So अब you have to prepare from the May और जून
means prelims to the मई, जून, जुलाई, अगस्त फर्स्ट वीक तक आप कर सकते हो। टाइम पीरियड देखने पे जो ऑब्जर्वेशन हुआ वो यही रहा। लेकिन यहाँ ऐसा भी था, सपोज करो 2025 का, तो कई सारे टॉपिक तुमने प्रीलिम्स तक तो प्रिपेयर किए होंगे। 2025 के प्रीलिम्स तक तुमने, यू सपोज दैट 2024 का मेंस हैपेंड इन सितंबर एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन फ्रॉम सितंबर। अब अगले पीटी तक का किए होगे तुम, जो कि जून में शेड्यूल है, ठीक है। तो सितंबर, देन अक्टूबर, देन नवंबर, देन दिसंबर, जैन टू अप्रैल। So in this area you have already prepared for the prelims point of view, but sometime UPSC also asks question from in mains from this time period। अब 25 का तुमने पीटी दे दिया भाई, चलो जून में तुम्हारा पीटी हो गया 2025, सितंबर में तुम्हारा मेंस है, तो सर पीटी के बाद का प्रिपेयर करते हैं करंट अफेयर्स। वो तो टाइम पीरियड तुम्हें करना ही है आफ्टर प्रीलिम्स, जो बता मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 मंथ का तुम्हारा है, ठीक है। ये 4 मंथ तो तुमको प्रिपेयर करना है, लेकिन उसके बाद इस सारे मंथ का भी तुम्हें प्रिपेयर करना होगा। तो दिसंबर टू मीन्स द प्रीवियस ईयर दिसंबर टू अगस्त मेंस के लिए ये महीना होगा, विच मीन्स दैट इज 9 मंथ का करंट तुम्हें तैयार करना होगा डेफिनेटली। क्लियर है? सो करंट एस्पेक्ट कहाँ तक का तैयार करना है? वी हैव टू फोकस एंड प्रिपेयर द करंट of the last 8 months for the mains, last 8 month, okay, of the exam year, that is for the mains। clear? number 2 sir, sources क्या होगा? what should be the sources? so number 1 newspaper, The Hindu, then PIB, ये 2 मेजर सोर्सेस हैं तुम्हारे। और जो टेक्स्ट जो बुक पढ़ते हो, स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत पढ़ लो, फिर DD बसु पढ़ लो, सो एनी टेक्स्ट बुक, न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस भी लोग पढ़ते हैं, तो वो देख सकते हो। अच्छा, नाउअडेज द सेवरल कोचिंग इंस्टीट्यूशंस कम विद देयर मंथली कंपाइलेशन और एनुअल कंपाइलेशन, so you can go with the annual compilation, that will be good for you। अगर द हिंदू रेगुलर पढ़ रहे हो तो ऑलरेडी तुम्हारे पास कंपाइलेशन है, तो करंट एस्पेक्ट के ये सोर्स है ये तुम्हें करना है। क्लियर? कम टू द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। PIB you have to cover with the governance, और द हिंदू भी तुम्हें पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोनों के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। पैटर्न, व्हाट शुड बी द पैटर्न? देखो पैटर्न तुम्हारा समझ में आ गया कि 5 to 6 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द पॉलिटी। क्लियर? 2 to 3 क्वेश्चन 10 marker that is related to the governance, and definitely 2 questions of 10 marker for the IR। clear? Again for the 15 marks question, same pattern, 5 to 6 questions 15 marks, 2 to 3 question of governance
और 2 क्वेश्चंस 50 मार्क्स ऑफ द IR, सेम पैटर्न तुम्हें फॉलो मिलेगा एंड यू हैव टू फॉलो दिस पैटर्न। रहा फोकस्ड कि सर व्हाट शुड वी फॉलो, तो ये सोर्स तो तुम साल भर का कंप्लीट करना ही करना, एंड स्पेशली इफ यू आर अवेयर अबाउट द सिलेबस, ठीक है, सिलेबस को तुम्हें और कमांड है, इफ यू आर अवेयर अबाउट द सिलेबस तो तुम्हें टॉपिक न्यूज़पेपर में पिक करने के लिए इजी होगा। सो सिलेबस यू मस्ट नो अबाउट योर सिलेबस, और उसके बेसिस पे यू हैव टू पिक योर टॉपिक फ्रॉम द करंट अफेयर्स न्यूज़, और इस साल के मेंस के लिए आपको प्रिपेयर करना होगा। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, सो 75 ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, डेफिनेटली एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के असेसमेंट पे आएगा। जुडिशियल सुप्रीमेसी और सेपरेशन ऑफ पावर पे क्वेश्चन आएगा जो कंपैरिजन वाला है, ठीक है। आर्टिकल 21 वेरी फेवरेट टॉपिक वो आएगा। गवर्नेंस में जो लैंडमार्क डेवलपमेंट हुए हैं वो तुम्हें देखना होगा, तो वो तुम्हें करंट अफेयर से पिक करना होगा। और अगर पॉसिबल हुआ, इफ दैट इज पॉसिबल, सो आई विल कम विद द स्पेसिफिक टॉपिक विच इज रिलेटेड टू योर मेंस की जो प्रोबेबल आ सकता है। स्टैटिक पोर्शन तुम्हें प्रिपेयर करना होगा, यू हैव टू प्रिपेयर योर स्टैटिक पोर्शन, क्लियर है। स्टैटिक पोर्शन को प्रिपेयर करो। applied aspect, you have to prepare in the applied nature. How to write answer, you know very well, just follow the topper's copy, ठीक है, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे लिखना, क्लियर। सो इफ देयर इज एनी इनकन्वीनियंस, सो हमारे तरफ से भाई एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। इफ और ये जो भी एक एफर्ट है दैट इज टू help the aspirant those who are preparing for the UPSC. And as far as my identity is concerned, so I am a faculty of GS paper 2 and the public administration optional in a reputed coaching institutions at ORN, Old Rajendra Nagar, Delhi. Okay, we will meet in the next topic maybe very soon. वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन दैट इज रिलेटेड टू द मेंस एस्पेक्ट ज़रूरी था, सो आई एम हियर विथ यू। और जो भी फीडबैक होगा काइंडली लेट मी नो कि सर ये टॉपिक है या, और दोज हु वांट टू ज्वाइन माय लेक्चर वो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।